लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल चूल। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सारी चीजों के बारे में मेरे को बताओ। मैं उन्हें अपने आप पर नहीं समझ पाता हूँ। मेरी जिंदगी अच्छी है ऐसा तुम्हें लगता होगा, एक समय पर थी बट अब नहीं है। एक समय पर स्टूपिड सी चीजें वो बहुत खुश करती थी, जैसे कि नाचना, गाना, दारू। जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। मैं डरने लगा था, बाहर जाने से डरने लगा था, लोगों को मिलने से डरने लगा था, अपने आप को ढकना चाहता था। पर फिर एक दिन मुझे तुम मिली। यू अगर तुम पहुंच गए, अगर तुम नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, but you're the problem in my life, but you're my only life. मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज। Let me in. Let me in. Well, this is my house too. I'm not scared of you. I was just trying to go inside the house by you because you were sitting on the steps here, drunk, singing to yourself. I don't have to say excuse me to you. You don't even count around here anymore. Always telling me what you've done for me. What have you done for me? You've never done anything for me. All you've ever done is held me back. Afraid that I was gonna be better than you. All you've ever done is make me scared of you. I used to tremble when I heard your voice. And Mama too. She tries. But she's scared of you too. What's Papa gonna say if we do this? What's Papa gonna say if I do that? What are you gonna do now? You're gonna hit me? You're gonna whoop me? You can't whoop me no more. You're too old. You're just an old man and crazy. You're just a crazy old man. Always talking about how I got the devil in me. Come on then. Put it out. Come on. Put it out. Come on! Put it out! टुडे आई वॉज गोइंग टू टेल हर, थैंक गॉड मैंने कुछ नहीं बोला। वो ना एज यूजुअल मैं आज पनवेल से अंधेरे के ट्रेन में बैठा और एज यूजुअल वो अगली स्टेशन में आ गई। खुशी
खुशी नाम है उसका। वो ना हमेशा खुश रहती है और आज वो कुछ अलग और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और हम ना पिछले 2 साल से इस ट्रेन में मिल रहे हैं और बाहर भी कभी कभार मिलते हैं और फ़ोन में भी बात करते हैं। वो ना मेरी दोस्त है। मैं कुछ कह रहा था, ओ हाँ, आज वो ना कुछ ज़्यादा अलग और खूबसूरत लग रही थी। उसने पहना था एक ब्लू शर्ट और ब्लैक टॉप, बहुत डीप, और एक नेक पीस भी जो वो छू रही थी, और रेड लिपस्टिक, ब्राइट रेड लिपस्टिक। वो बोल रही थी, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? मैं ना हमेशा ये लिपस्टिक खा जाती हूँ। बस तभी मुझे मन आया, बस बोल दो, अरे बस बोल दो। ऐसा सोच रहा था, मगर I tried to say, खुशी I love you, but it didn't work. I didn't say it. टाइम निकल गया और लिपस्टिक भी निकल गई, मगर I couldn't say it. And then she said something. She said, आज लड़के वाले आ रहे हैं और वो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। बस हो जाए, हो जाए। मैंने बोला, हो जाएगा खुशी, लिपस्टिक हो या ना हो। And then she did something that I didn't expect. She hugged me. और तब मुझे कुछ समझ आया इस शहर के बारे में और इस शहर के लोगों के बारे में। Nobody wants to put up an appearance, but even if they seem like they're doing it, they still don't want to do it. The truth is, everyone just wants to be accepted, but that's always going to lead to disappointment. But every so often, you'll meet one stranger, maybe at the beach, maybe working next to you at work, and maybe you'll meet them on a train like me. And for that stranger, you listen to everything they say. I just don't get it what it is lately. But these guys coming up with all these cheesy lines, it just disgust me. I mean, they say, you know, you look so pretty, or did I just told you your smile looks so gorgeous? I mean, who the hell they are to give me all such sort of creepy compliments? And you know what? I don't even do any sort of thing to show any sort of interest. In fact, I look somewhere else whenever I see any eye contact happening. But still, they will come over thinking they are so soft, but it's simply repulsive. Are you getting what I'm saying? I mean, what we girls should do these days? I think I should just vomit on myself so these guys will walk away. But I bet what I'll get is they'll come and say, you know, the way you vomit is so delightful. I mean, dude, you know what I want? I want to be left alone. Dude, I have a man and I love my man. And I try to be so polite. But these cheesy compliments are getting too much now. I mean, these guys are so stupid and so oblivious when they don't get any sort of interest from their girls. And there are days when I feel like I'd rather be a man. लेफ्टिनेंट हैरी जिंदल, मॉर्को स्पेशल फोर्स, श्रीनगर, यूनिट 202, रिपोर्टिंग सर। समय आए सर, हमें एक टिप मिली थी कि 10 टेररिस्ट बिंदापुर में बेस्ड है।
25 जैन सुबह 3 बजे 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हम हाजी लैंड किए। वहां से 20 मिनट में बिंदापुर पहुंचे एंड वी एलिमिनेटेड देम इंक्लूडिंग उबैद जो कि लेफ्टिनेंट चीफ जाकिरुल रहमान का भांजा था। ये हमारी यूनिट के लिए बहुत बड़ी जीत थी। बट सर तभी एक ड्रोन एलओसी क्रॉस कर आया एंड इट बॉम्ब्ड अस। सर हमारे 3 जवान जख्मी हुए और 3 तो शहीद हो गए। अविनाश कौल एक कश्मीरी पंडित जिसने टेररिस्ट के अगेंस्ट जिम्मा उठाया था, वो अब नहीं रहा। 22 साल का आसिम रिवाजी जिसके बाप ने बोला था कि अगर मेरा एक बेटा देश के लिए शहीद हो गया तो मैं मेरा दूसरा बेटा देश के लिए फौज में भर्ती कर दूंगा। सर एज एन इंडियन सोल्जर वी लिव बाय चांस, लव बाय चॉइस एंड किल बाय प्रोफेशन। बट धोखे से सख्त नफरत है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस कमेटी से। हमारा रडार 10 सेकंड में 360 डिग्री टर्न लेता है, मतलब 7 मिनट में 420 सेकंड। मुझे वो आदमी चाहिए जो उस रात रडार ऑपरेशन हेड कर रहा था। That's all I request from this committee justice. बाकी हम मुंह खुलवा लेंगे सर। जय हिंद। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल करण पर यह इल्जाम लगा था कि जहां लाश घसीटी गई वहां उसके जूतों के निशान पाए गए। योर ऑनर, मैंने अभी आपके सामने हर तरीके से एक बोरी घसीटी जिससे लाल रंग बह रहा था, लेकिन मेरे जूतों के निशान तो नहीं छपे। इसका यह मतलब है कि खून वहां पहले से मौजूद था और करण के जूतों के निशान वहां बाद में पड़े। हमारे विटनेस के कटघरे में खड़े मिस्टर मलिक का कहना है कि उन्होंने करण को लाश अलमारी में छुपाते हुए देखा। योर ऑनर, फर्ज कीजिए घर में मैं दाखिल हुआ, लाइट जलाई और मैं अलमारी का दरवाजा खोला, अचानक मेरे हाथों में एक लाश आ गिरी। क्या देखने वाला ये बयान देगा कि लाश हाथ में आ गिरी? नहीं योर ऑनर, वो भी वही बयान देगा जो मिस्टर मलिक ने दिया है। इससे साफ जाहिर हो गया कि मेरा मुवक्किल करण उस वक्त खून की जगह मौजूद नहीं था। उसे ना ही पता था कि जमीन पे खून है जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, और इसे ये भी नहीं पता था कि अलमारी में लाश मौजूद है। लेकिन कत्ल तो हुआ है, और कातिल योर ऑनर इस वक्त इसी अदालत में हम सब के बीच मौजूद है, और वो है मिस्टर मलिक। योर ऑनर, मेरे हाथ अभी ऐसी शहादत लगी है जिससे तमाम शुबे यकीन में तब्दील हो जाएंगे, और वो है आले कत्ल। जिस चाकू से मकतूल अजीत का खून हुआ था वही चाकू जिस पर मिस्टर मलिक का नाम लिखा है। मिस्टर मलिक, आपने अदालत से यह छुपाया कि 30 फरवरी की रात मकतूल अजीत आपके घर आया था घोड़े के रेस के पैसे मांगने। इस बातचीत में आपकी हाथापाई हो बैठी, और जब मकतूल अजीत टेबल पे गिरा तब उसका इसी चाकू से खून हो गया। ये बातें उसके इस मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो गई। शायद उसका मकसद आपको ब्लैकमेल करना था। योर ऑनर, जोश में आके मिस्टर मलिक ने बहस करते हुए ये पूरी अदालत के सामने साबित कर दिया कि मकतूल अजीत उनके घर आया था और वो इनके नहीं बल्कि अपने ही चाकू से मारा गया। मैं अदालत को यह भी बताना चाहूंगा कि ये चाकू नकली है और ये फोन मकतूल अजीत का नहीं है, क्यों मकतूल के पास कोई फोन बरामद नहीं हुआ, ये तो मेरा है। मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए और कोई चारा नहीं था। That's it, Your Honor. हेलो डॉक्टर। हाय, मेरा नाम तनुज है। एकदम नॉर्मल सी लाइफ है मेरी। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, घर आके सो जाता हूँ।
पर एक चीज है मेरी लाइफ में जो बहुत स्पेशल है, वो है मेरी गर्लफ्रेंड प्रज्ञा। जब से हम दोनों मिले हैं ना, ऐसे लगता है मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। ऐसे लगता है पजल का मिसिंग ब्लॉक मिल गया हो। और जब से हम मिले हैं, वो किसी से बात नहीं करती। कहती है मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी और की क्या जरूरत। पर मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जलते हैं साले। कहते हैं कि अगर तेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे पार्टी में लेकर आ या उसकी फोटो दिखा। क्यों क्यों दिखाऊं मैं फोटो? क्यों लेकर आऊं मैं पार्टी में? अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको सोशलाइज करना नहीं पसंद। एक दिन दिनेश और प्रेम मेरे घर आते हैं, कहते हैं कि लेट्स गो टू पार्टी। ठीक है, एंड आते ही दे स्टार्ट सर्चिंग माय हाउस डेस्परेटली। तो ऑब्वियसली प्रज्ञा डर गई। प्रज्ञा डरी और वो मेरे पास आई, मेरे को हग करके रोके, मेरे को बता रही है कि प्लीज स्टॉप देम, मेरे को डर लग रहा है। एंड ऑब्वियसली मैं दिनेश और प्रेम के पास गया। मैंने बोला देखो यार, ये मत करो, प्रज्ञा को डर लग रहा है। और वो उल्टा मेरे से पूछने लगे कि कहाँ है प्रज्ञा, हमें तो कोई लड़की नहीं दिख रही। ये बात सुन के ना डॉक्टर, मेरे को बहुत गुस्सा आया। तो मैंने मेरा क्रिकेट बैट उठाया और दे मारा दिनेश के सर पे। प्रेम भागने लगा, पर ज्यादा दूर तक नहीं, उसके सर पे भी मार दिया। अब दोनों पड़े हैं खूनम खून, अधमरे पड़े हैं साले, फिर भी कह रहे हैं कि यहां कोई लड़की नहीं है। I just want to be me. I want to be more real in my life. I'm just so tired of trying to fit in and be accepted by everyone. I feel like I'm lying to myself. And if people can't accept me for me, who I truly am, then I guess I don't want to know those people. Yes, you're right. I have been distant. I have been distant because there are certain people I don't want to know. People with who I don't have anything in common with. And the worst part was, I used to think that was a bad thing. I used to think that I had to be liked and accepted by everyone all the time. And I did not even realize when I started hiding the true me. But since the time I made the decision to be the real me, it's like a burden has been lifted and I can breathe again. I've been more easy with myself, more calm. Unlike before, how I used to be stressed, nervous over stupid, silly things that didn't even matter. It has taken me time to get over myself, to make the decision to be more genuine. I may seem different to you and to other people, but I guess this is who I am, and I'm not going to apologize for it. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं होश और आवाज में हूं। मैंने जिंदगी में एक ही चीज की खोज की है, वो शोहरत और नाम।
उसी के लिए घर बार छोड़ा, दिन रात मेहनत की, जिल्लतें उठाई, मुसीबतें उठाई, फिर भी मेरे को शोहरत नहीं मिली। ये मेरा लास्ट चांस है सर, मेरा लास्ट चांस है। आज मेरे सामने एक मशहूर व्यक्ति खड़ा है, आज उसी के सामने इसी गन से खुद की खोपड़ी में गोली मार लूंगा और मेरा छोटा नाम आपके बड़े नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। और ये बात कल मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा दी जाएगी। आज मेरे सामने एक मशहूर आदमी खड़ा है, उसके सामने एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली, अपना खून कर लिया, और नौजवान का नाम था रयाली पाठक। रयाली पाठक। आज रात को जो मैं कह रहा हूं वो कल सारा का सारा अखबार में छाप दिया जाएगा और लोग पढ़कर कहेंगे कि एक अच्छा लड़का था रयाली पाठक। सर जी आप देख लेना, मेरे लिए रोएगी दुनिया, मेरी एक एक बात को याद करेगी, मेरी एक एक वाक्य को याद करेगी, मेरी एक एक कहानी को याद करेगी। सर मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ रोहिणी बनर्जी और आप देख रहे हैं जब रिपोर्टर थी तब मुझे हाथ से बड़े अच्छे लगते थे। तो ये है एक पिछले जर्नलिस्ट की इस्तीफा दे दिया। अब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मुझे डिटॉक्स की सख्त जरूरत थी। इस मीडिया सर्कस से, इस मुंबई शहर से और अपने आप से फुल डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब पवन, तो किया पवन को फोन। पवन मेरा अच्छा खासा दोस्त और हम दोनों गए गोवा बाई रोड। लौटते वक्त हुई एक घटना, एक्चुअली हॉरर स्टोरी। गाड़ी का टायर पंक्चर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में तो मैं हाथ पे टॉर्च थामे खड़ी थी और पवन बेचारा टायर पर जैक घुमा ही रहा था कि उतने में एक सुमो की हेडलाइट हम पर पड़ी, हम दोनों पर पड़ी। हम दोनों की हालत तो सिरन जैसे हो गई थी, जो हेडलाइट देख के फ्रीज नहीं हो जाता सुन करके, ठीक वैसे। तो सुमो से 3 हट्टे कट्टे पट्टे नीचे उतरे और पूछा, मैडम मदद चाहिए? और पवन ने हाँ कर दी। मतलब मैं हाथ पे टॉर्च था, मैं खड़ी खड़ी कांप रही हूँ लिटरली, और उसने हाँ कर दी। क्योंकि मुझे तो कल शाम का समाचार साफ साफ दिख रहा है ना, गोवा मुंबई हाईवे पर भूतपूर्व टीवी रिपोर्टर पर सामूहिक बलात्कार। पर हुआ कुछ और ही, उन्होंने हमारी टायर बदल दी और हमारे आगे चलाते हुए पेट्रोल पंप तक एस्कॉर्ट भी किया। उसके बाद समझ में आया कि दुनिया इतनी बुरी नहीं जितनी हम जर्नलिस्ट को दिखती है, और उससे कई ज्यादा जितनी हम उसे टीवी पर दिखाते हैं। अब नौकरी छोड़ दी और इस डिटॉक्स के बाद लग रहा है कि जर्नलिज्म ही छोड़ दूं।
जिंदगी को एक एक नया नजरिया दूं। हम कॉलेज में एक ही क्लास में थे और हम अच्छे दोस्त ऐसे बने जब हम एक कॉलेज ट्रिप पर गए थे। एंड देन विद टाइम थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग और हम एक दूसरे के और करीब आने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग। हम रोज डेट पर जाते थे, कभी कॉफी, कभी पानी पूरी, कभी मिल्क शेक, कभी आइसक्रीम, सब कुछ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एंड दैट वाज इनफ फॉर अस। फिर एक दिन एक कॉल आया और सब कुछ बदल गया। वो बस रोए जा रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। बात ये थी कि शी वेंट टू एन हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप, बट हर रिपोर्ट सेड दैट शी वाज HIV पॉजिटिव। ये सुनते ही माई बॉडी वेंट स्टिल विथ शॉक। She was cursing herself and I tried consoling her, like कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। पर चीजें बदली। उसके पेरेंट्स, बहुत से उसके दोस्त, सब दूर जाने लगे उससे। सबका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो गया। वो कॉलेज का फाइनल ईयर था और उसने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। She went into depression. मैं तो था ही, but I suggested her कि वो जाए किसी थेरेपिस्ट के पास, and she didn't listen to me. क्योंकि ये सब भी तो एक टैबू है ना हमारी सोसाइटी में। मैं बस वेट कर रहा था कि कॉलेज कर लो जल्दी से और फिर जॉब लगते ही इससे शादी कर लूंगा। फिर एक दिन फिर एक कॉल आया। वो उसके भाई का था। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, पर तब तक जब भी मेरे पापा वापस घर आते थे तो उनकी कार्गो जैकेट हमेशा चॉकलेट से भरी पड़ी रहती थी। आई ऑलवेज यूज टू वंडर वाई। कश्मीर में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उन्होंने देखा कि लोग वहाँ इंडियन आर्मी ऑफिसर से डरते हैं। ये देखो बड़े मायूस हो गए, इसलिए तो उनके पास इतनी सारी चॉकलेट हुआ करती थी। जब भी किसी कश्मीरी के पास से वो गुजरते थे तो उन्हें वो एक चॉकलेट दिया करते थे। दैट वॉज माई फादर, कैप्टन मनदीप सिंह, एक लॉयल इंडियन आर्मी ऑफिसर और उससे पहले एक कंपैशनेट ह्यूमन। साल 1999 में जब एक टेररिस्ट अटैक हुआ था तब वो शहीद हो गए थे।
कॉल्स बड़े एक्सपेंसिव हुआ करते थे उस समय पर, इसलिए वो चिट्ठियाँ लिखा करते थे और उस चिट्ठिया में हमेशा लिखा करते थे वो क्यों नहीं आ पाएंगे। वो लिखते थे कि दुनिया में बस शांति फैल जाए और मैं आ जाऊंगा। वॉर में मेरे जैसे और 1000 लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन क्या इसलिए हम इसका बदला लें या शांति और आयाम कायम करें, क्योंकि जो हमने खोया है वो कोई और ना खोए। पेशे से मैं एक राइटर हूँ और मेरे लेटर्स को समझे और लोग समझे पीस के बारे में, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि हर मसले का हल जंग नहीं होता। थैंक यू। कट कट कट। पहले डायलॉग याद करो, फिर दोबारा रीटेक होगा। क्या चल रहा है? रीटेक पे रीटेक, इस तरह तो ये सेट बहुत टाइम खाएगा। ये हीरोइन को 4 डायलॉग नहीं याद होते। पता नहीं ये लड़कियां हीरोइन बन कैसे जाती हैं। हीरोइन बनने के गुण तो कुछ अलग ही होने चाहिए। और ये कैमरामैन 2 कौड़ी की अकल नहीं है इसको। कल सेट पे अपना रोलिंग कैमरा लेके आ गया, उल्लू का पट्टा। अबे अगर तू क्लोजअप लेता कितना मस्त सीन आता और सारे लोग पसंद भी करते, पर नहीं। कौन समझाए इन बेवकूफों को। ओह तू, व्हाई नॉट यू? तुम क्यों नहीं? तुम भी तो हीरोइन बन सकती हो ना, आज नहीं तो कल। तुम्हारी शक्ल देखो कितनी अच्छी है, सूरत अच्छी है, सब कुछ तो है तुम्हारे में हीरोइन बनने के लिए। और तुम्हारी याददाश्त उस बेवकूफ हीरोइन से मुकाबले में तो बहुत अच्छी होगी ना, इतनी किताबें जो पढ़ती हो। सर शॉट रेडी है। थोड़ी प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, अब संभल जाएगा। आई टेक केयर, डोंट वरी। और वो जो हीरोइन है ना, वो भी यहीं पे जूनियर आर्टिस्ट हुआ करती थी। आज वो हीरोइन बन गई और कल तुम बन सकती हो। सर शॉट रेडी है। ओके, एवरीबॉडी ऑन द फ्लोर। Leave me alone. So, I'm from a family that never had faith in me. They always had the poor man's mentality, and I knew I could find a different way or a better way. Nobody needs to settle for what they are born into. There's always the possibility to grow. I'm not putting my parents down, but the truth is in the facts. I grew up very poor. Everything was hands-on. Whenever I needed a sweater, my mother would knit me one. There was no modern shopping. I used to look like a girl up until a few years ago. It's because I used to always wear my sister's clothes. My father, he's a factory worker. And my mother, she works at the call center on the other side. It was always like, go to the school and get a job. But it was never like, build your own business and follow whatever you want. Especially when you're good at it. Yeah, I may fix my mother's broken sink fixed, and get my father a set of tools. But you know, I always felt like they are looking down on me, like they were not happy for me, and it hurts. At least for once, I'd like to get told that I'm doing a great job. I'll be somewhat appreciated.
विकास, माय लवली हस्बैंड। 25 साल हो गया हमारी शादी को, एक सदी सी लगती है। चीनी, you know when I first met him he was a baby। नहीं, असली वाला नहीं, he was just 22-year-old and I was 24, so obviously 2 साल बड़ी थी। हम लोगों को ना बहुत प्यार था एक दूसरे से, like we were madly and deeply in love with each other। वो मैं हूं ना वाला प्यार याद है? Violins, orchestra and music in the air वाला लव, वही था। फिर हमारी शादी हो गई, फिर वही यूजुअल इन-लॉज का रोज का घिसा पिटा सास बहू वाला ड्रामा। इस सब में पिसा कौन? मेरा विक्की। Like he started drinking and daily बात पे fighting and all with me। I felt bad for him, but self-preservation नाम की भी कोई चीज होती है ना। So I started working and completely involved myself into my work and my Shonu baby, my son Ishan। Then we moved to Bangalore after some time, like it was perfect। The weather, the surroundings, society, life was like a second honeymoon। बस कमी थी तो सिर्फ एक दोस्त की, और वो कमी पूरी की शीतल ने। शीतल मेरी वॉकिंग पार्टनर बन गई थी एंड माय बेस्ट फ्रेंड। और जब मैं और विकी कहीं बाहर जाते थे तो शी वुड बेबी सिट ईशान। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता था, लाइक धीरे धीरे वो भी हमें ज्वाइन करने लगी एंड हम तिगड़ी बन गए थे। देन मुझे कुछ अजीब लगा, लाइक बीवियों को दी होती ना भगवान ने सिक्स सेंस। सो आई फेल्ट कुछ तो गड़बड़ है, शीतल और विकी के बीच कुछ तो चल रहा है। फिर तो मेरे को एक पल चैन नहीं था, पर कुछ कहूं तो कैसे कहूं? They will feel bad if it's untrue। और कोई मुझे एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि हाँ कुछ तो है। Then I went to Delhi for few days and the day I came back, Sheetal didn't call me। Strange। Vicky also drank and went to sleep early, and all of a sudden his phone rang at 12। So I checked his phone। So there was this message from Sheetal। Baby, is she back? Did she guess about us? I was shocked, literally shocked, like मैं सुन्न हो गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, but मैंने वापस रिप्लाई किया, No, do you love me? And she texted back, You know I do। It was confirmed। मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बट प्रूफ के लिए मैंने उन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लिया एंड फॉरवर्डेड टू माई सेल्फ। देन खड़े होकर विकास को सोते हुए देखा, माई विक्की, एंड स्लैप्ड हिम अक्रॉस हिज चीक्स। He woke up startled and saw his phone in my hand and snatched it and obviously read the message। और फिर मुझसे लिपट कर रोने लगा, कहता बेबी मुझसे मिस्टेक हो गई है, मुझे माफ कर दो शालू, I did a mistake। You know, इस सब के बीच में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि विक्की ने मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे छीन ली। मतलब यहाँ मेरी फैमिली बिखर रही थी और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को रो रही थी। इस अफेयर को खत्म होते हुए 4 साल लग गए। Yes, 4 bloody long years। ईशान भी बड़ा हो गया और I was trying to heal। फिर जगह बदलती गई एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, लड़कियां भी बदलती गई।
And what stayed? First my love for him, then my habit of him. You must be wondering, like, why didn't I leave him? पैसा नहीं था, करियर नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, or do I still love him? मैंने बताया क्या? आज हमारी 25th एनिवर्सरी है. Cheers. पता है, एक वक्त था जब ये खामोशी, ये अकेलापन मुझे ना काटने में ना दौड़ता था, लेकिन अब ना आदत सी हो चुकी है. पता है, मैं ना इतनी ना जॉली चेयरफुल हुआ करती थी कि मेरे जो दोस्त है ना, मुझे ना कहते थे कि ना तू होती है ना तो कभी किसी को ना बोर नहीं होने देती. और मैं हमेशा चाहती थी कि जब तक मैं उनके साथ हूं ना सब खुश रहे. पर मुझे क्या पता था, एक हंसाने वाली एक जोकर खुद को ही ना हंसा पाए. यार, प्यार चीज ही ऐसी है. पता है, गुलाब का फूल ना आपको ना बहुत आकर्षित करेगा, पर उसके जो कांटे हैं ना आपको ना कभी दिखाई नहीं देते. जब आप उस गुलाब के फूल को अपने हाथों में लेकर घूमोगे ना, ध्यान ना देना, वही कांटे आपको चुभते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है. पर जिंदगी है ना, हमेशा ना नए नए पाथ पढ़ाती है. मैंने भी आज एक पाथ सीखा है, पर मुझे यकीन है कि ये जॉली चेयरफुल लड़की ना जरूर वापस आएगी. तो मैं एक टीचर हूँ. सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ और सबके लिए टिफ़िन भी तैयार करती हूँ. मुझे 3 टिफ़िन बनाने पड़ते. सास को खिला पिला कर दवा देती हूँ, बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ. फिर जैसे ही उसे स्कूल के बस में छोड़ के आ गई, मैं भागते हुए वापस आती हूँ और फिर तैयार होके मुझे वापस दौड़ के बस के लिए निकलना पड़ता है. बस में भीड़ होती है. कभी कभी बस में चलते गिरते पड़ते पुरुषों से के साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ती है. कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी लड़की, महिला, वृद्धा या वृद्ध के लिए कोई बंदा अपने सीट से खड़ा होगा. खैर, ऐसे करते करते घंटी के साथ स्कूल पहुंच जाती हूँ. फिर स्कूल में इस क्लासरूम से उस क्लासरूम, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, स्टाफ रूम से प्रिंसिपल के ऑफिस के सफर तैर करते करते, स्टूडेंट्स के कॉपीज चेक करते करते और उनके सवालों का जवाब देते देते वक्त का पता ही नहीं चलता. वापस आने का टाइम हो जाता है. एक दिन तो रिसेस में मुझे चक्कर आ गया
पूरा स्कूल मेरे नजरों के सामने ऐसे घूम गया। उस दिन प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और कहा, मैडम लगता है आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, जांच करवाओ। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, ये थकान और कम नींद के वजह से हुआ है और कुछ नहीं। खैर, ओ अच्छा, उस दिन रिसेस के वक्त मनीष जी मुझे घर छोड़ने आए, वही हमारे कलीग, स्कूटर पर। और जैसे इन्होंने देख लिया मुझे स्कूटर से उतरते हुए, ये पूछने के बजाय कि मैं कैसी हूँ, क्या हुआ, मैं ठीक हूँ कि नहीं, बड़ा सा मुंह बनाए और बोले, किसी लेडी टीचर के साथ नहीं आ सकती थी क्या? खैर, फिर वही घर आके बेटी को संभालना, वही शाम की चाय, वही रात का खाना। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते और सारे किचन के काम करते करते मेरे पैर जवाब दे चुके होते हैं। फिर अगले दिन की भी तैयारी करना। आटा घोलना, सब्जी काटना, सुबह के कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना, सारे काम मैं रात को एक निपटा लेती हूँ। कभी कभी तो बर्तन भी घिसना पड़ता है अगर हमारी बाई नहीं आई तो। वैसे ये मेरे साथ ही ऑफिस से आ जाते हैं और मेरे से पहले ही निकल जाते हैं ऑफिस से। घर आते ही टीवी पर कुछ अगरम वगरम देखना, अपने दोस्तों के साथ पॉलिटिक्स और देश के बारे में बातें करना, और यही सभी उनका चलता है जब तक खाना ना आए। एक बार उन्होंने खाना खा लिया फिर आराम से सो जाते हैं। मैं जब तक किचन का सारा काम करके बेड पे जाती हूँ, मेरे दोनों पैर जवाब दे चुके होते हैं। अरे सुनती हो? आई। थैंक यू, बाय बाय।